Hello everyone, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you how you can define and understand the concept of order and degree of the partial differential equations. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? You can see my playlist partial differential equation where you have seen about the course PD. What is the geometrical significance of the partial differential equations? What is the linear and the non-linear partial differential equations? आप इन 3 लेक्चर को अगर आप सुनेंगे तो यू विल बी रियलाइज दैट कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है. फाइन. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री. तो पहले मैं उसी तरह से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन टाइप का बताता हूँ. व्हाई द ऑर्डर एंड द डिग्री इज इंपॉर्टेंस इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. चलिए, we all know that whenever we are dealing with the partial differential equations, that means we are consider the partial derivatives which are dependent on more than one variables. Fine. So as you can see, we have used the many derivatives in the partial differential equations. Some of first order, some are second order, and some even are higher order. Fine. But the question is, what does the meaning of its derivative, or how we can define the complexity of such equations? If I say the first equation is del u by del t plus del u by del x is 0, second equation I can write as a del u by del t plus del square u divided by del x square, which is 0. Can I say the both equations has the same complexity? और if they are not same, तो इन दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, किसका ऑर्डर हाई है, दैट विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर. फाइन. जैसे इफ द वन इक्वेशन हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यू एक्स, क्या नोटेशन बताई थी मैंने यू एक्स की, दैट इज अ डेल यू बाय डेल एक्स. एंड सिमिलरली वन हैज यू एक्स एक्स, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द u with respect to x. इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी विच सीम्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स? और अगर मैं किसी में पावर लिख दूं तो क्या इसका कोई मैटर होगा? डज दैट मैटर इफ एनी ऑफ द डेरिवेटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पावर? सो सच काइंड ऑफ द कंसेप्ट्स, टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ द कंसेप्ट हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? वी नीड द कंसेप्ट्स ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द partial differential equations. So to classify the partial differential equations and to choose which solution method will be applicable to solve the partial differential equation, we need the order and the degree. चलिए, so if I consider the z is my dependent variable, x and y are my two independent variables, so I can write z is z of x comma y. So wherever I have written del z by del x, that itself means that zx. Some books may have used u of uxy. आप z की जगह पे u भी लिख सकते हो. फाइन. तो उस केस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल u हो जाएगा. दैट्स जस्ट द नोटेशन. तो इस केस में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन करी थी इन द व्हाट इज अ पीडी लेक्चर के अंदर? द फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल z, और इसके कोरस्पोंडिंग जितने भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे zx, zy, zxx एंड so on. That equation is called as the general form of the any partial differential equation. क्लियर? चलिए, अब व्हाट इज द ऑर्डर. अब आप सबसे पहले इन सभी एग्जांपल्स में देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार करा आपने? हाईएस्ट डेरिवेटिव जैसे पहली इक्वेशन में देखो तो सिर्फ एक ही बार लगाया ना डेल. फाइन. अगर कहीं पे ये चीज लिखी होती इसका मतलब क्या था? दैट इज अ टू टाइम डेरिवेटिव. पहली इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है? वन टाइम्स. सेकंड बार में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? टू. थर्ड में टू. थर्ड लास्ट में थ्री ऑर्डर. so that is called as the order of the differential equations of the partial differential equation. That means the highest order derivative present in the equations. तो पहली इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाईएस्ट वन है. और आप ये भी कह सकते हो कि इसकी अगर पावर k लिखी है हमने किसी भी वेरिएबल के साथ, तो k इज माई
ऑर्डर के जो लार्जेस्ट होगा, इसमें देखो दोनों का 1 1 है, ऑर्डर इज 1। इस केस में आपका ऑर्डर कितना है, पहली इक्वेशन का 2 है, दूसरे का 1 है, मैक्सिमम इज माई 2। इस केस में 2 and 2 बोथ, और लास्ट के केस में 3 इज द राइट आंसर। फाइन। देन हाउ यू कैन डिफाइन द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बड़ा ही सिंपल है, जो भी ये आंसर आया है 1, ये कौन सी टर्म के कोरस्पोंडिंग आया है, इसके कोरस्पोंडिंग आया है और इसके कोरस्पोंडिंग, इसी का आया ना। इन दोनों की पावर क्या है, जो भी इसकी पावर होगी दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये ऑर्डर 3, इसमें कौन सी टर्म है जो ऑर्डर 3 की है, ये टर्म, इसकी पावर कितनी है 1, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री इज माई 1। बट मेक श्योर जब भी आप डिग्री की डिफाइन करते हो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द रेडिकल एंड फ्रैक्शन। कभी भी पावर में 1/3 और पावर में 2/3 ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन। और जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द डिफरेंशिएशन इज अप्लाइड। अगर हम डिग्री की बात करें, जैसे आपको ये एग्जांपल दे, इसका पहले ऑर्डर निकालो कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट टाइम 1 टाइम्स डेरिवेटिव है। सेकंड इक्वेशन, व्हाट इज द ऑर्डर इज, दिस इज द 2। फाइन। नाउ यू कैन डिफाइन द डिग्री। कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें डिग्री ऑर्डर 1 आ रहा है, एक ये क्वांटिटी है और एक फर्स्ट क्वांटिटी है, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 1, दोनों का मैक्सिमम कितना है 2, सो द डिग्री ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज माई 2। सेकेंड इक्वेशन देख लो, डिग्री ऑर्डर पहले 2 किसका है, इस क्वांटिटी का, इसका पावर कितना है 1, ये नहीं है पावर बिकॉज इसका ऑर्डर 2 नहीं है। फाइन। सो द फर्स्ट इक्वेशन हैज ऑर्डर 1 डिग्री 2 while the second equation has order 2 degree 1. So the degree tell us how strongly the derivative appears. Clear? Because power हो रही है ना इसके ऊपर, the power is 1, power is 2, अगर power 2 है तो more stronger, power 1 है that is a degree 1 है that's a less stronger. Like which of the following identify the which one is a linear, non-linear, order and degree. Order और degree तो हमने इस लेक्चर में करा है, लीनियर एंड नॉन लीनियर हमने कहाँ करा था, लास्ट लेक्चर में। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो कितना है, ये रहा 2, इसका डिग्री कितनी है, अगर तो आप इसको डिग्री 1 कह रहे हो दैट इज अ रॉन्ग आंसर। अब आप कहोगे सर इसकी पावर तो 1 है, गलत क्यों हुआ, क्वेश्चन आंसर स्टेटमेंट में क्या था, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड द फ्रैक्शन। क्या इस क्वांटिटी में कहीं भी फ्रैक्शन है, ये लिखा हुआ ना, मेक श्योर स्टूडेंट्स जो कहीं पे भी फ्रैक्शन और रेडिकल लिखा है, फाइन, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं लिखाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे z इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको फ्रैक्शन फ्री करना होगा, तो कैसे करोगे आप, मैं इसको पहले राइट साइड पे ले जाऊं, फाइन, विच इज माइनस वाई ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, तो ये 1/3 को खत्म कैसे करोगे आप, इफ यू राइट एज ए क्यूबिंग ऑन द बोथ साइड, फाइन, तो जैसे क्यूब करोगे इट विल बी दिस क्वांटिटी, फाइन। अब जैसे आप इसका a प्लस बी होल क्यूब करोगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, डिग्री विल बी 3। क्लियर। सो द डिग्री विल बी 3 एंड वाई नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्या बताया था उसमें, जब भी, और आप ये भी कह सकते हो whenever degree is my greater than 1 then it is always non-linear, फाइन। लेकिन कन्वर्स टू नहीं है, अगर नॉन लीनियर है तो इसकी डिग्री हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे भी देखो इसका ऑर्डर कितना है, डेरिवेटिव तो 1 ही है ना, और डिग्री कितनी है, देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है हाफ, दैट इज मस्ट बी फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शन, तो स्केलिंग करनी पड़ेगी, डिग्री विल बी माई 2, अगर डिग्री 2 है तो दैट इज माई नॉन लीनियर, फाइन। अच्छा नेक्स्ट वन, ऑर्डर इज माई 1, डिग्री इज, अब आपको सर स्केलिंग करेंगे तो डिग्री 2 हो जाएगी, बट दैट्स रॉन्ग। क्या ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज दिस रूट x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, नो, बिकॉज x इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इंडिपेंडेंट है तो उसमें फ्रैक्शन हो सकता है, फाइन, फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शन इज ऑलवेज फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी
वन और कोई भी टर्म आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. लुक एट द लास्ट वन. ऑर्डर इज वन, फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शन है, डिग्री निकालेंगे, और लीनियर है कि नॉन लीनियर है, दैट इज अ नॉन लीनियर बिकॉज जैसे आप इसको साइन इज अ नॉन लीनियर फंक्शन. बात रहेगी इसकी डिग्री की. अगर तो आप सोच रहे हो इसकी डिग्री वन है, दैट्स रॉन्ग. वाई? बिकॉज अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द साइन ऑफ ए माइनस ए क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस A5/5 फैक्टोरियल माइनस A7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो जैसे आप इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर आप डिफाइन कर पाओगे कितनी है? 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड. Fine. So we can say degree is not defined, order is one, but it is a non-linear. Is it okay? Now why these order and degree are important? तो जैसे ही आपने order and degree निकाला, that will help you to define the complexity of the system. Fine. That will help you to decide which method you can use for finding the solution, and it can help you to decide, or you can classify the partial differential equations based on the order and degree. Similarly, as I mentioned you, the higher order define the more complexity, higher degree means the more stronger non-linearity. तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, विच इक्वेशन हैज द मोर कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर कहाँ मिलेगा? ऑर्डर में. तो किसका ऑर्डर ज्यादा है? ux. इसका ऑर्डर कितना है आपके पास? 1. इसका ऑर्डर कितना है आपके पास? 2. So which one is a more complexity? Higher order, more complexity. So the answer of the first question will be uxx. If the derivative appears the power of ux, what does it matter? So what is the meaning of that? Order is 1, degree is my 2. Fine. तो डिग्री के ऊपर क्या डिफाइन करता है? नॉन लीनियरिटी. दैट मीन्स द ux square has more non-linear components than of the single ux, and that's the physical meaning of the order and the degree of the partial differential equations. We will expand this order and degree into the first order differential equations in our next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning as well. Goodbye, students.